اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے بہت ہی محترم اور قابل عزت، قابل صد احترام قرآن دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو آج کے سبق جو ہمارا اس کورس کا آخری سبق ہے، آخری سبق کا آخری حصہ ہے، ہم نے حصہ اول کل پڑھ لیا تھا، حصہ دوئم اس کا جو ہے وہ آج پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس کورس کو عام طور پہ ہم QC1 قرآن کورس 1 بھی کہتے ہیں، اردو میں آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے بھی اس کا نام ہے۔ اور یہ آپ کو پھر بتاتا چلوں کہ ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم جو ہیں وہ اس کے ڈیزائن کرنے والے ہیں، بنانے والے، اور الحمدللہ یہ اللہ کی مہربانی سے ہے کہ اس کو میں تھوڑا بہت آپ کو پڑھا سکا ہوں۔ ہاں جی، تو آج انشاءاللہ ہم اس کلاس میں، کل ہم نے چونکہ حصہ اول پڑھ لیا تھا، تو آج ہم حصہ دوم میں، آپ کو پتہ ہے کہ کیا کرتے ہیں، ہم ہمیشہ حصہ دوم میں گرامر پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو آج گرامر انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، اور ابھی ہماری جو بہن ہے آپ سب کو کروا رہی تھیں پریکٹس گرامر کی، تو مجھے یہ دیکھ کر خوشی ہو رہی تھی کہ آپ کو یاد ہے ہم نے پہلا اشارہ تھا اس سے شروع کیا، تو سب سے پہلے ہم نے بنیادی 6 اشارے کیے، اور ہم نے کہا ہوا، ہم، ذرا سب کریں میرے ساتھ مل کے سب۔ تو ہم نے پہلے دن کیا کہا؟ ہوا، ہم، انتا، انا، انتم، نحنو۔ یاد ہے وہ دن سب کو؟ ہم نے یہ کہا ہوا وہ، ہم وہ سب، انتا آپ، انا میں، انتم آپ سب، نحنو ہم سب۔ تو جب ہم نے یہ اشارے کیے تو اس وقت شاید یہ اشارے بھی کچھ لوگوں کے لیے ذرا تھے کہ اچھا یہ کیسے کرنا ہے، کبھی اشارے مکس ہو جاتے تھے، کبھی ادھر کے اشارے ادھر ہو جاتے تھے۔ تو اب الحمدللہ مجھے یقین ہے کہ آپ سب بڑے زبردست قسم کے یہ اشارے کر سکتے ہیں، اور یہ آپ کو یاد ہے۔ ذرا مجھے بتائیں کن کن لوگوں کو یہ پہلے والے 6 اشارے جن کے پرفیکٹ ہیں، ذرا بتائیں۔ ہوا، I don't know why the recording was stopped. Anyways, so Jazakallah for reminding Sister Bisma. I had started the recording, but somehow it has been stopped. But anyways, it is on now. So al-fa'il, al-maf'ul, al-fi'l بھی ہو سکتا ہے، اور فاعلن، فاعلن اور فاعلن یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ تینوں اسم ہے، تو اسم کی نشانیاں ان کے اوپر بالکل آ سکتی ہیں، اور اسم کی چونکہ جمع بنانے کا فارمولا جو ہے اسی فارمولے پہ ان کی جمع بن سکتی ہے، واو نون لگا دیں یا نون لگا دیں۔ تو فاعل سے فاعلون، فاعلین بن سکتا ہے، مفعول سے مفعولون، مفعولین بن سکتا ہے، ٹھیک ہے، یہ دیکھیں۔ اور اس کی مؤنث بھی بن سکتی ہے فاعلہ، اور مؤنث کی جمع بن سکتی ہے فاعلات۔ یہ سب آپ کو آتا ہے، کوئی نئی بات نہیں میں بتا رہا آج آپ کو، صرف بتا یہ رہا ہوں کہ آپ کو یہ یاد رہے کہ یہ 3 اسم ہیں، پہلے شروع کے 3 جو ہیں وہ فعل ہیں، ان کی جمع ہمیں پتہ ہے نا۔ فعلہ کی جمع کیا تھی؟ فعلو، وہ اور طریقہ جمع کا۔ یفعلو کی جمع کیا تھی؟ یفعلون، ٹھیک ہے۔ افعل کی جمع تھی افعلو۔ یہ جو ہے اسم، جو ہے اسم کی جمع کا طریقہ ہم نے الگ سیکھا ہوا ہے کہ واو نون یا یا نون کے اضافے سے، اور یہ یاد رکھنا یہ ایک طریقہ ہے، زیادہ تر ایسے بنتے ہیں، اور طریقوں سے بھی بنتے ہیں۔ تو مفعولہ یا مفعولات، ٹھیک ہو گیا۔ اب یہاں پر کوئی سوال آپ کے ذہن میں آ رہا ہے اس سلائیڈ پر؟ کوئی سوال ذہن میں پوچھ لیجئے۔
جی یہ برادر شہزاد ہیں. برادر شہزاد بتائیے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر یہ فائلون اور فائلین یہ ایک ہی چیز ہے, جمع مذکر ہے جمع؟ سر یہ دوبارہ ذرا اونچا بولیے. یہ سر اوپر جو جمع بنائی ہے فائل کی, فائلون اینڈ فائلین, تو یہ دونوں مذکر کے لیے ہی ہیں؟ ہاں یہ مذکر دیکھیں وہ نشانی مذکر ہی کی ہے نا اس کے اندر. فائل مذکر ہے نا خود, تو اس کی جمع بھی مذکر کی صورت میں بنی, فائلون فائلین, یہ مذکر ہے. فائلہ جو ہے فائلہ کرنے والی, گولتا سے ہمیں اشارے سے پتہ چل گیا. اور فائلات یہ مونس اور مونس کی جمع. ٹھیک ہے, گڈ کوشچن, تاکہ سب کی اٹینشن بھی چلے اس طرف ہو گئی. سیم از فار مفعولون, مفعولین, مفعولہ, مفعولات. ٹھیک ہو گیا. یہ مختلف جگہ پہ استعمال ہوگا. جی برادر اسماعیل آپ پوچھئے, کیا سوال ہے آپ کا؟ سر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ سر اللہ. یہ فاعل اور مفعول, کرنے والا اور جس پر اثر پڑا, ان کی تو جمع آ گئی ہے. فعل جو ہے فعل, اس کی ہاں جمع اور وہ نہیں ہوگا سر, اس کے بارے میں ذرا. میں چاہ رہا تھا یہ آبزرویشن آپ لوگ کر لیں. ہاں جی, فعل کی جمع نہیں ہوگی, کیونکہ کام جو ہوتا ہے نا, کام کی نوعیت جو کام ہے اس کی جمع کی ضرورت نہیں ہوتی. مصدر جو ہے اس کی جمع نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, اب بہتر دیکھیں سر. اس کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو ایک آسان بتاتا ہوں. جیسے آپ کوئی اور ٹیبل جیسے کر کے دیکھتے ہیں ہم. ذکرہ سے بنا ذاکر, تو ذاکرین زیادہ یاد کرنے والے, ذاکرون دونوں ہو سکتا ہے, ذاکرہ عورت بھی ہو سکتی ہے, ذاکرات عورتیں. مذکور سے مذکورات, مذکورون, یہ سب ہو سکتے ہیں. اور ذکر, اب ذکر کیا ہے, یاد کرنا, اس کی کیا جمع ہوگی؟ اچھا اس چیز کو آپ نے اردو سے کنفیوز نہیں کرنا. اردو میں تو وہ بن جاتا ہے نا, جیسے یاد سے یادیں ہے نا, تو وہ کام نہیں کرنا آپ نے. یا اذکار بنتا ہے لیکن فعل مصدر اپنی حالت میں ویسے وہی رہتا ہے. ٹھیک ہے, تو اور اگر بنے بھی تو اس کی کیا کہنا چاہیے اس کو, اگر بن بھی جائے, مطلب ایکسیپشنز ہوتی ہیں اس کے اندر. عربی میں ایکسیپشنز آر آلویز دیئر. تو وہ کیا ہوں گی, وہ ڈپینڈ کرے گا کس کانٹیکس میں وہ یوز ہو رہا ہے. ٹھیک ہے جی. سو 3 افعال اور 3 اسما جو ہیں وہ آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. اچھا یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا ذکر سے اذکار, ایک چیز یاد رکھیں, جو اذکار ہے نا, اذکار کا معنی کچھ اور ہو جاتا ہے. ذکر جو ہے یاد کرنے کے اس پروسیس کا نام ہے. تو جو آپ اذکار بھی کر رہے ہوتے ہیں, یعنی جو ڈفرینٹ پروسیسز کر رہے ہوتے ہیں, وہ سارے بھی ذکر ہی ہوتے ہیں. Are you getting this point? میرا خیال ابھی یہ اسٹیج نہیں ہے, بس میں ابھی جذباتی نہ ہوں, بس اتنا ہی آپ کو بتا دیا. شارٹ ٹیبل میں فعلا, یفعل, افعل, فاعل, مفعول, فعل, یہ ہمارا شارٹ ٹیبل بن گیا آسان. یہ ہم نے اس طرح اٹھائے ہیں, یہ آپ سب کو پتا ہے. ہم نے پہلے ماضی سے پہلی چابی اٹھائی, مضارع سے پہلی چابی اٹھائی, اور امر سے پہلی چابی اٹھائی, اور پھر ہم نے 3 اسما بھی اس میں ڈال دیے, تو شارٹ ٹیبل بن گیا. تو آئیے اب ہر سیٹ کا ایک شارٹ ٹیبل بن گیا نا. تو فتح یفتح, افتح, فاتح, مفتوح, فتح, یہ میں نے آپ کو کروا دیا. ناصرہ کا شارٹ ٹیبل کون کروائے گا آپ میں سے؟ سر ایمان اللہ صاحب کوئی کوشچن پوچھنا چاہ رہے ہیں. جی برادر امان اللہ پوچھے. آپ کو انمیوٹ کیا ہوا. اچھا چلے, ناصرہ کا شارٹ ٹیبل کون کروا رہا ہے جی؟ سسٹر فرحانہ شاید ٹرائی کریں گے. سسٹر فرحانہ کروائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نصرہ, ینصرو, انصر, ناصر, منصور, نصر. نصر, ماشاءاللہ, ویری ویل ڈن. ٹھیک ہو گیا جی, آپ نے کروا دیا ہمیں ناصرہ کا ٹیبل. آگے ہم کرواتے ہیں سسٹر ماورا کا بھی ہاتھ ہے. سسٹر ماورا آپ بتائیے دارابا کا ٹیبل, شارٹ ٹیبل کیسے بنائیں گی آپ؟ چھوڑو آپ ٹائم چلا گیا ہے, میل کر دو. یس سر. سسٹر ماورا, وہ شاید میرا خیال ہے انمیوٹ نہیں ہو رہا ہم سے.
अच्छा चलें, इजाज़त साहब आप तो नहीं साथ कर रहे अनम्यूट? अगर हम में से एक करेगा तो। नीचे एक सिस्टर अनीका है, सिस्टर अनीका, अनीका आजाद, सिस्टर आपको अनम्यूट किया है, आप करवाइए। जी सर दरबा का करवाना है। ओके सो दरबा इसने मारा, यदरिबू वो मारता है या मारेगा, इद्रिब मार, दारिब दारिब मारने वाला, और मदरूब जिसको मारा गया, और दर्ब मारना या मार। बहुत खूब माशाल्लाह, वेरी गुड वेरी गुड। और आपने बहुत अच्छा किया, ये जरा मुश्किल था एकदम से दे देना सर इशारे कर रही थी तो फिर सही हो गया, किसी तरह याद आ गया। माशाल्लाह माशाल्लाह जी। ओके सर थैंक यू। आपने साथ इशारे भी किए हैं तो आपको भी हमेशा याद रहेगा। देखिए ना, दिस इज द फॉर्मूला। इशारे जो है ना ये हमें रिमाइंड करवाया करेंगे, ब्रेन को फोर्स करेंगे, तो सारी कुव्वतें मिल जाएंगी। वो कहेगा नहीं ये दाराबा, यदरिबू, इदरिब, दारिब, मदरूब, दर्ब। तो इंशाल्लाह ये अच्छा जी। चौथा जो है ये कौन करवाएगा? तो वो है सामिया का। सामिया वाला जो है ब्रदर शहजाद अहमद को कहते हैं, वो करवाएं। ब्रदर शहजाद अहमद जी करवाएं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सामिया उसने सुना, यसमाओ वो सुनता है या सुनेगा, इस्मा वेरी सुन, गुड माशाल्लाह। इस्मा सुन, सामे सामे सुनने वाला, वेरी गुड और माशाल्लाह। मसूम मसमू, मसूम सुना गया जिसको, समा समा समा, समा माशाल्लाह, वेरी वेल जी, वेरी नाइसली डन। अगेन इट वाज डिफिकल्ट क्योंकि इसका जरा थोड़ा सा बदल जाता है। तो सामिया उसने सुना, और यस्माउ वो सुनता है, इसमें सुन, इस्मा सुन, सामे मसमू सम। तो इस तरह से हमने ये कर लिया जी इसका भी टेबल। अच्छा, इन टेबल्स को और सेट्स को याद रखने के लिए एक आप कह लें उसको निमोनिक टाइप बना हुआ है। आप छोटा सा अगर वो याद रख लें तो इंशाल्लाह ये चारों के माना आपको कभी नहीं भूलेंगे। वो ये है कि पता होता है ना उसने खोला, तो आप कहें अगर आपने कुरान खोला, अगर तुमने कुरान खोला, अगर मैंने कुरान खोला, तो नासरा, तो अल्लाह की मदद आएगी। कुरान खोलने पर अल्लाह की मदद है, कुरान खोलने पर अल्लाह की मदद है। सो नसरा उसने मदद की, इससे याद रहेगा ना, नसरा मदद वाला है। तो फतहा उसने खोला, अगर हमने कुरान खोला, नसरा तो मदद आएगी अल्लाह की। दरबा वरना, यानी अगर आपने नहीं खोला, आपने इस उम्मत ने ना कुरान खोला, तो दरबा मार ही पड़ेगी इसको, दरबा मारना। और समिया लिहाजा सुन रखो, खबरदार रहो, समिया सुन लो। सो अच्छा माशाल्लाह, ग्रेट। इजाज भाई इज ऑलरेडी टोल्ड, वो बता रही हैं, ग्रेट हो गया। सो अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी गुड। अगर आपने इसको किया हुआ है तो इसका मतलब है फिर तो आपको और भी आसानी से याद है। बिल्कुल ठीक हो गया। चारों टेबल हमें, आज हम थोड़ा सा एक स्टेप आगे जा रहे हैं, एक टेक्निकल बात भी सीखने जा रहे हैं। और ये टेक्निकल बात आपको थोड़ी सी टेक्निकल है, ज्यादा नहीं, कुरान के और नजदीक ले जाएगी, अल्फाज की कम्प्लेक्सिटी को समझने में मदद देगी। और इसलिए जरा आपने तवज्जो से सुनना है, क्योंकि कुरान में अक्सर जो है ना अफाल जुड़ कर आते हैं, अफाल फिर आगे जमायर के साथ जुड़ जाते हैं। तो फेल के साथ जब जुड़ता है ना, तो फिर जरा तो हम बेसिक लेवल के सिंपल एक्सप्रेशंस करते रहे। आज हम ये थोड़ा सा जमायर के साथ जोड़ेंगे, तो आपने गौर से सुनना है। आई विल ट्राई टू शेयर अ कपल ऑफ टिप्स विद यू आल्सो। तो अब ये आपने सबने किया हुआ फेल माजी की प्रैक्टिस, सिर्फ क्विकली दोहरा लेते हैं। जब आपसे कहा जाता है हल नसरता ज़ैदन, आपसे हल नसरता ज़ैदन, तो आप जवाब में क्या कहते हैं? नाम नसरतु ज़ैदन, ऐसे ही कहते हैं ना आप, ये प्रैक्टिस है हमारी। हल नसर तुम ज़ैदन, जब आपसे कहा जाता है तो आप क्या कहते हैं जवाब में? आप कहते हैं नाम नसरना ज़ैदन। यही होता है ना, जब सामने की बात हुई तो कॉन्वर्सेशन है, आपस में हमारा वो एक्सचेंज होता है। जब सामने वाले का, तो इधर आप जवाब देंगे, यानी मैं आपसे कह रहा हूं तो आप अपनी तरफ करके जवाब देंगे। ये याद है ना सबको? साइड का भी आपको पता, हमने कहा था
हल नसर जैदन, तो हल नाम नसर जैदन, हल नसर जैदन, नाम नसर जैदन, वो गायब है तो गायब की तरफ इशारा। तो ये सारी हमने प्रैक्टिस पहले की हुई है, सिर्फ आपकी याद दहानी के लिए। अब अगली जो असल चीज आपको यहां समझानी है वो सुनिए। अब जैद उड़ गया, वो आसान था, जैद एक नाम था, आप पूरी ढूंढ लेते थे। अब हमने जैद की बजाय ना वहां जमीर लगा दी है, और ये थोड़ा सा वर्ड कॉम्प्लेक्स बन गया। जब लगा ना हल नसरता हु, दो इशारे इकट्ठे हुए, है ना, ये उन इशारों की तरह है जैसे हमने कहा था अनजलना हु। तो अब ये वो वाले इशारे हम सीख रहे हैं, इसलिए जरा तवज्जो से नसरता हु, हल नसरता हु, समझ रहे हैं ना। अब जवाब कैसे आना चाहिए इसका? जवाब के लिए टिप ध्यान में रखें, आपने ब्रेक करना है लफ्ज को। अगर ब्रेक नहीं करेंगे तो गलती के बहुत इम्कानात हैं। जो माशाल्लाह आप में से ज्यादा इंटेलिजेंट लोग हैं वो तो शायद क्विकली पिक कर लें, और मुझे यकीन है आप सारे इंटेलिजेंट हैं। तो मैं जरा जो नकम्मा हूं ना, मैं इस तरह सीखता हूँ, इसको इस तरह ब्रेक कर लेता हूँ। तो मैं इसको कहता हूँ, अच्छा ये क्या लफ्ज है? नसरता हु। अच्छा ओके ठीक है। तो जैसे मैं आपको याद है उस वक्त भी कहता था अब्दू हु, तो अब्दू हु में भी आसान था, वो तो था ना इसम के साथ लग रहा था अब्दू, मतलब एक इशारा था अब्दू हु, उसका बंदा। यहां जरा थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है ना, दो, एक तो फेल चूंकि खुद अपना एक इशारा दे रहा होता है और एक जमायत में से लग रहा होता है। तो अब जब आपने जवाब देना है तो सोच के देना है कि क्या आया। पहले आया नसरता, तो नसरता के लिए उंगली मुड़ गई किधर, नसर तू हो गया, और दूसरा है हु के लिए हम उधर ही रखेंगे, हु, नाम नसर तू हु। ठीक है, ये बात समझ आई है? ये मुझे बता दें, ये बिकॉज आई विल नॉट मूव फॉरवर्ड अंटिल यू अंडरस्टैंड दिस। आपको जब तक ये समझ नहीं आएगा, ये हर एक को समझ आनी चाहिए। ये बात आप सबको समझ आनी चाहिए। अच्छा, अब ये इन्होंने बड़ी मजे की बात की है, ये कह रही है आखिरी वाली जमीर नहीं बदलेगी। नहीं, ये याद रखें, वो गायब की सूरत में नहीं बदलेगी। ये सिंपलेस्ट एक्सप्रेशन अभी पढ़ाया जा रहा है ना, तो ये टिप ना बनाए अपने ज़हन में ये टिप बनाए जो मैं आपसे कह रहा हूं कि इनको ब्रेक करके आपने करना है, ब्रेक करके। अगर उसमें गायब हो तो वो गायब की तरफ ही रहे, ठीक है। अगर गायब हो तो गायब ही की तरफ रहे, ठीक है। और अगर तो कोई और आ जाए ज़मायर में से तो फिर कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंगली आप उसको चेंज करें, ठीक है। तो हल नसरता हु ये था, तो आपने जवाब में कहा नाम नसर तू हु, ठीक हो गया। अब हाँ माशाल्लाह सिस्टर मावरा बड़ा अच्छा बता रही है कि जअलना हा, जअलना हा कहाँ हमने पढ़ा तो मुझे याद नहीं आ रहा। जअलना हा के भी दो इशारे किए थे, मुझे अनजलना हु के याद है, बहरहाल आया होगा, चले। सो नसर इसी तरह है, हल नसर, अब ये था नसर तुम हु, यहां देखें ये सिंगुलर है। तो अगर मैं कहता हल नसर तुम हम, दोनों हो सकते हैं ना, कुछ भी जुड़ के आ सकते हैं। हल नसर तू, हल नसर, अगर ये भी हो सकता है हल नसर तुम हु, ठीक है जी। तो अब ये जो है, नहीं नसर ना हम का भी हो सकता है, हल नसर ना हम, अभी उसकी बात नहीं हो रही, अभी ये जो बात हो रही है वो समझे जरा। ये इशारे समझे आप यहाँ पे। नसर हमने कहा नसर था सिंगुलर के लिए, हल नसर था हु, तो आपने कहा नसर तू हु। अब मैं प्लूरल के लिए कह रहा हूं, हल नसर तुम, ता से तुम बनते ना, हल नसर तुम हु। अच्छा, अब ये आप जरा सामने देखें, आपको पढ़ने में लग रहा होगा ना कि ये नसर तुम तो नहीं लिखा हुआ, ये तो लिखा हुआ है नसर तुमूहु। नसर तुम क्यों नहीं लिखा हुआ?
یہ بالکل نصر تم ہی ہے، لیکن عرب لوگ اس کو پڑھتے ایسے ہیں پڑھنے کی آسانی کے لیے، وہ نصر تم ہو کی بجائے اس کو پڑھتے ہیں نصر تمو ہو، حل نصر تمو ہو. یہ یاد رکھنا ہے آپ کو پڑھنے کی ہے، یہ وہی حیت میں وہی ہے. آپ کو یہ بیس پتہ ہے آپ کی کہ نصر تم ہو، حل نصر تم ہو. ٹھیک ہے. اچھا میں پھر ایک دفعہ آپ کو بتا دوں، ورک بک میں جو ہمارا جو لاسٹ لیسن ہے اس کے لاسٹ پیج ہے، سب سے زیادہ ہمارے دوست اس میں غلطیاں کرتے ہیں، کیونکہ اس میں یہ اسی طرح مل کے آتے ہیں اور پھر وہ رانگ ایکسپریشن اس لیے کرتے ہیں کہ بریک نہیں کرتے. آپ نے بریک کریں گے، آپ کو نصرہ کا سارا ٹیبل آتا ہے، آپ بڑے آسانی سے بریک کر سکتے ہیں اس کو. آپ کو پتہ ہے نا کہ کون سی اصل حیت ہے فعل کی. ہاں جی، یہ لینگویج سٹائل ہے کہ نصر تمو ہو کہیں گے ہم، نصر تمو ہو. ٹھیک ہے. یہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے حل نصر تمو ہم. اس کا جواب دیں کیا ہوگا؟ حل نصر تمو ہم، اس کا جواب کون دے گا آپ میں سے؟ جو اس کا جواب دے لے گا نا تو مجھے یہ اندازہ ہوگا کچھ سمجھ آ گئی. بردر طارق سعید ہے، یہ مجھے نیا نام لگ رہا ہے اس لیے میں ان کو آن لائن ڈائریکٹ بھی لے رہا ہوں. بردر طارق سعید، آپ کوشش کرنا چاہتے ہیں؟ آپ ہاں جی سر. کیا ہم نے ان سب کی مدد کی؟ جواب عربی میں دینا، ترجمہ نہیں کریں. اب تو عربی ہمیں آنی چاہیے. ہاں جی. نعم نصرناہ، نعم نصرنا ہم. ہاں جی ہم، زبردست. یہ ہوئی ہاں نا جی. بات. یہ پورا کرنٹ لگا ہے مجھے آپ نے خوشی سے کہ آپ نے کر لیا اس کو. نعم نصرنا ہم. ٹھیک ہے جی. تو نعم نصرنا ہم. اب آپ اگر مطلب آپ اگر بات سمجھ گئے، اس کا مطلب ہے کوئی بھی ضمیر لگے آپ انہیں بریک کر سکتے ہیں، آپ رسپونڈ کر سکتے ہیں. تو ضمائر جو ہے نا اس طرح جب قرآن میں لگے ہوئے لگ کر آئے الفاظ کے ساتھ، افعال کے ساتھ، تو آپ نے اس کو الفاظ کو بریک کر کے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ مجھے آپ کے جواب سے بڑی تسلی ہوگی کہ سمجھ آ گیا ہوگا. بردر ضیاء الحق صاحب نے ہاتھ کھڑا کیا ہوا ہے، ان کو لیتے ہیں اور پھر آگے چلتے ہیں. جی بردر ضیاء الحق. سر میں نے ویسے اسی کے جواب دینے کے لیے آپ کا کیا تھا. میں آپ سے کچھ اور پوچھ لیتا ہوں. جی ٹھیک ہے سر. حل اگر میں آپ سے پوچھوں حل نصرکم تو آپ کیا جواب دیں گے؟ حل نصرتم، نعم نصرنا. ماشاءاللہ، ویری گڈ. یہ this is a real difficult level. So you are intelligent جی، ماشاءاللہ. بالکل آپ سے کہا گیا تھا. اب دیکھیں بریک کرنا نا. حل ناصرہ وہ تھا نا، غائب والا تھا ناصرہ، اس نے. اور کس کی مدد کی؟ ہم، آپ سب کی. آپ سب کی، آپ سے میں بات کر رہا تھا. تو آپ نے کہا نام ناصرہ نا، ہاں اس نے ہم سب کی مدد کی. تو بالکل صحیح آپ نے جواب دے دیا جی. تو زبردست ہو گیا یہ، بلکہ کافی ایڈوانس لیول ہے. تو آپ اس کو اگر سمجھ رہے ہیں، آئیے اسی چیز کو ہم ایک دفعہ مضارع میں کر کے دیکھ لیتے ہیں. ہم نے سمپل مضارع کی پریکٹس کی تھی. حل تنصرو زیدن، اور آپ نے جواب میں کہا تھا نام سوری حل تنصرو. یہ دیکھیں نا اشارہ غلط ہو رہا تھا، ساتھی کا ینصرو ہے یہاں پہ، تو کنفیوز کر رہا ہوں. حل تنصرو زیدن، آپ نے کہا تھا نام انصرو زیدن. حل تنصرون زیدن، نام ننصرو زیدن. ایسے تھا نا، یہ اشارہ سب کو یاد ہے. آئیے اس اشارے کو بھی ہم اسی طرح تھوڑا، اب ہم اسم ہٹا کے اس کے ساتھ فعل لگاتے ہیں. تو ہم نے کہا حل تنصرو ہو یا حل تنصرو ہو تنصرو. اب اس کو بریک کریں گے تو یہ آپ سے صحیح ہو پائے گا، بریک نہیں کریں گے پھر نہیں ہوگا اس کا جواب. تو اگر میں نے آپ سے کہا حل تنصرو ہو مضارع میں، اس میں کوئی ٹرائی کرنا چاہتا ہے اس کا جواب دینا؟ اچھا یہ بردر شہزاد کا ہاتھ پتہ نہیں ابھی کھڑا کیے ہیں، پہلے سے آپ بتائیے گا کیا جواب ہوگا. جی سر، حل
तंसुरूहु, नाम अंसुरूहु, आपकी आवाज बिल्कुल नाम या तो हल्की है, थोड़ी ऊंची बोले, मुझे बिल्कुल नहीं। नाम अंसुरूहु, बिल्कुल माशाल्लाह। नाम अंसुरूहु, अंसुरूहु, नाम नाम अंसुरू। अंसुरूहु। इसी तरह अब देखिए, इसी तरह अब अगली चीज आप नोट करें, क्या होता है कि आपने आवाज से और ब्रेक करके चीज को जानना है। अब जो अगला लफ्ज है ना, हल तंसुरूना हु, बहुत से लोग जो है ना इसको कंफ्यूज करते हैं, गलत करते हैं, वो समझते नहीं ये तंसुरूना है। तंसुरूना यानी तंसुरू, तंसुरूना जमा, तंसुरूना हु। ब्रेक सही कर लेंगे आप, ये नून और हा मिल गए जुड़ के, तो वो तंसुरूना इकट्ठा मिलके वो बात का समझ नहीं आती सही क्या लफ्ज है, कैसे करूं। इस पेज पे अक्सर लोग पूछते हैं, ये अगर आप करना सीखेंगे ना इंशाल्लाह, तो बड़ी तेजी से आप पुराने एक्सप्रेशन में जो इस तरह जमायर जुड़ के आए होते हैं। सो हल तंसुरूना हु, ठीक है जी। तो अब आपको पता है तंसुरूना को आप क्या करते हैं, पलटते हैं तो बनाते हैं नंसुरू। तो नंसुरू हु है ना, बात समझ गए आप, नंसुरू हु। तो इस तरह से इंशाल्लाह हमने मुदारे की जो है ना भी प्रैक्टिस कर ली। अमर की कर लेते हैं, अमर में भी इसी तरह है, अमर में जरा आसान है, बल्कि उनसुर जैदन था, आपने कहा था अनसुरू जैदन, उनसुरू जैदन आपने कहा था नंसुर जैदन। अब यहां जमीर लगा उनसुर हु। अच्छा, इसको लोग ब्रेक नहीं कर पाते, इसका मसला ये है, ये आसान लेकिन उन्हें समझ नहीं आती। वो कहते हैं अच्छा ये शायद टेबल में से कौन सा है उनसुरू, ये हमने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, ये उनसुरू भी नहीं है। आवाज से आपने समझ नहीं, ये उनसुरू एंड उनसुरूहु लगता है ऐसे जैसे सेम बात है, नहीं, दो मुख्तलिफ चीजें। उनसुरू में दो बातें हो सकती हैं, या तो पेश हो, वो होता नहीं, या वाव अलिफ वाला हो। आपको याद है ना, उनसुर उनसुरू। तो अब समझ नहीं कि ये उनसुरहु है, सिंगुलर वाला है उनसुरहु। जो नीचे आया ना उनसुरूहु वो है, ठीक है, उनसुरूहु वो अलग है। तो जब सिंगुलर का हुआ आपने कहा उनसुरहु, आपको कहा गया तो आपने क्या कहा अनसुरू, अनसुरू, क्योंकि वहां पे अनसुरू कहते हैं आप, अनसुरू अनसुर नहीं कहते, अनसुरूहु। और उनसुरूहु का जवाब नंसुर नंसुर नंसुरूहु। तो ये हो गई जी आपकी अमर की प्रैक्टिस। अल्हम्दुलिल्लाह इसके साथ ही हमारा जो है ना वो ये ब्रदर हसीब थोड़ी देर सब्र करें और आखिर में पूछेगा ये सारे सवालात। वो जरा डिस्कनेक्ट हो जाता है, बात कहीं कहीं चली जाती है। तो ये था जी आपने कैसे जमायर को ब्रेक करना है। मैं सबसे दरख्वास्त करूंगा कि अगर आप वर्कबुक नहीं भी सबमिट करवा रहे, इसको ऑप्शनल है क्योंकि इस कोर्स में, तो उसका आखिरी पेज सारे करने की कोशिश कीजिएगा आज कल जब भी वक्त मिले, तो इंशाल्लाह बड़ी अच्छी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, आज का नुक्ता तालीम क्या है, बड़ा मजे का नुक्ता तालीम है। हमें मोटिवेट करने के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं युकालु लिसाहिबिल कुरान, साहिब कुरान से कहा जाएगा, युकालु काला यकूलु से युकालु, तो कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा, इकरा वर्तकी वरत्तिल कमा कुंता तुरत्तिलु फिद दुनिया फइन्न मंजिलतक इंद आखिरी आयतिन तकरहुहा। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे जो साहिब कुरान था, जो कुरान पढ़ता था, जिसे कुरान से मोहब्बत थी, जो कुरान सीखता था, जो कुरान जिंदगी में लाता था, उस पर अमल करता था, कि पढ़ो और चढ़ो, यानी पढ़ते जाओ आयात को और मर्तबा में ऊंचे जाते जाओ, जैसा कि तुम पढ़ा करते थे दुनिया में तरतील के साथ, तवज्जो के साथ, अच्छाई के साथ, बेहतरी के साथ, रुक रुक कर अच्छे तरीके से। तो क्या होगा, तुम्हारा मर्तबा उस आखिरी आयत पर होगा जो तुम पढ़ोगे। लिहाजा कुरान सीखते जाइए, इसको पढ़ते जाइए, जन्नत में क्या खास मुकाम होगा। आप आयात पढ़ते जाएं, जरा उसको तसव्वुर में ला के देखिए, सोचिए, और आपके दर्जात बुलंद होते जाएं, और हमारा फिर दिल करेगा या अल्लाह मुझे और आयात आनी चाहिए थी, मैंने और पढ़ा होता है, काश कि मैं और ऊपर दर्जात में चलता जाता। सो इस हदीस के मिसदाक जन्नत में आला मुकाम के लिए आप कुरान सीखे और आगे बढ़िए। एक चीज याद रखें, हम दुनिया में घर बनाने के लिए, हम में से अक्सर अहबाब
जो मेरी उम्र के हैं, ये बड़े हैं, मैं आप सब, एक हमारे यहाँ पाकिस्तान में तो खास तौर पे लोगों को बड़ा ख्वाब होता है कि उन्होंने घर बनाना, जिंदगी की सारी जमा पूंजी सारा कुछ इकट्ठा करके वो कहते हैं एक घर बन जाए, होता है कि नहीं, अपना घर हो। तो वो जो अपना घर है उसके लिए पूरी पूरी उम्र, बुढ़ापा आ जाता है, अपनी जवानी को जो है ना, कई हम अपने काम नहीं करते, कई जिंदगी की और चीजों को, नेमतों को सेविंग करते हैं, ये वो, तो उस घर बनाने के लिए बड़ी कोशिश करते हैं। अच्छा, ये भी नहीं पता होता कि वो घर हमारे नसीब में होगा कि नहीं। बहुत से लोग ये देखा गया कि वो घर बनाते बनाते बूढ़े हो गए, बड़ी नेमतें छोड़ दी, घर भी ना मिला, उसमें दाखिल भी ना हो पाए। अच्छा चलें, लेट से आपने जल्दी घर बना लिया, आप पे अल्लाह की मेहरबानी थी, आपको अल्लाह ने दिया हुआ थे असबाब, कितनी देर रहेंगे उस घर में? 20, 30, 40, 50, 25, कितने साल रहेंगे? जिंदगी जाहिर है हमारे ये पाकिस्तान की एवरेज भी अगर आप देख लें, और अगर एवरेज आम लोगों की बात कर रहा हूँ, अगर 30-40 साल की उम्र में घर बनाए तो उसके बाद 20-30 साल इतना रह पाएंगे, तो ज्यादा बुढ़ापा और परेशान भी करेगा। तो दुनियावी घर के लिए दिन रात हम कोशिश कर रहे हैं और उसमें अपना सुकून भी ढूंढना चाहते हैं। तो असल घर जो है ना, जो असल सुकून है, हमेशा की तरक्की है, वो कहाँ है? वो साहिब कुरान के लिए, हाफिज कुरान के लिए, अमल करने वाले के लिए, कुरान पर अमल करने वाले के लिए। लिहाजा कुरान से मोहब्बत कीजिए, हदीस के मिसदाक कुरान दोस्त बनिए, एक दूसरे के लिए दुआ कीजिए कुरान को। अच्छा, तर्जमे से आपको आयात बड़ी जल्दी याद होंगी। ये मैं जरा कम वैसे मिसालें देता हूँ, मेरी बेटी बैठी है मेरे साथ, तो ये कल रात मुझे बताने लगी, कुरान की एक आयत कहती है कि मैं पढ़ी थी कुरान पाक, तो मैंने उस आयत का खुद से तर्जुमा किया। आयत आपको याद है? एग्जाम्पल आयत याद है? सुनाए। ये मुझे अभी आयत भी सुना रही है, उनकी बात भी सुनाई, सबको आवाज आ रही। ये इन्होंने खुद से, इन्होंने थोड़ा बहुत जैसे कोर्स ये कर रही हैं, 10 years, तो ये कुरान पढ़ती रहती हैं, तो खुद ब खुद उसका तर्जुमा करती हैं। तो रात इन्होंने आयत जरा उनकी बात में बोली। तो ये इन्होंने कुरान में आयत पढ़ी, इन्होंने खुद से इसका तर्जुमा करने की कोशिश की, तर्जुमा कर लिया, तो मुझे बता ये रही थी कि बाबा उसके बाद से ये आयत मुझे मुंह पे आती जा रही है, मुझे याद हो गई है। सो दिस इज व्हाट आई वांट टू टेल यू, मैं इस पर्पस के लिए आपसे शेयर कर रहा हूँ। सो दी पर्पस इज कि अगर आपको तर्जुमा आता है, आपने उस पर तवज्जो किया, तो इंशाल्लाह याद भी जल्दी होगा। ये इसका एक और फायदा है। लिहाजा आए हम सब ये नियत भी कर लेते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह खुद मेरे साथ भी होगा, बहुत सी सूरतें अल्लाह के फजल से बात तो ऐसा हुआ है कि मैंने एक सूरत को 1-2 दफा पढ़ा है, क्योंकि मीनिंग ज़हन में रख के जहाँ कहीं भूलने लगी तो सोचा अच्छा क्या कनेक्ट बनता था, तो सूरतें याद हो गई। तो मेरा ख्याल है सबसे लंबी और रिसेंट जो सूरत मैंने याद की वो थी सूरह नबा, अम्मा यतसाअलून। तो अल्हम्दुलिल्लाह दिनों में याद हो गई, और उसका पता चल गया कि पहले हिस्से में क्या कहा जा रहा है, फिर क्या कहा जा रहा है, फिर क्या कहा जा रहा है। तो इस तरह से इंशाल्लाह आपको जब तर्जुमा भी जो है, तो आप ये नियत भी कर लीजिए, हिफ्ज भी करेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे जितना हो सके। पूरा कुरान आप हिफ्ज नहीं होता, कोई बात नहीं, जितना करें उतने दर्जात बढ़ते जाएंगे, समझ कर पढ़े, इंशाल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसी नेमतें अता करेगा जो कभी खत्म ना होंगी, कभी कम नहीं होगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसके साथ जो हमारा ये पूरा सबक 20 जो लेसन था ना, वो भी पूरा हो गया। वैसे तो हमने 19वें लेसन में अपना टारगेट अचीव कर लिया था, 232 अल्फाज सीखने वाला, जो कुरान में 41,111 बार आए हैं। इन 2 असबाक के अंदर आपको कल और आज में थोड़ा सा और कुरान से अल्हम्दुलिल्लाह हमने करीब होने की कोशिश की। और अब इस मुबारकबाद के बाद कि आप सब को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये अल्लाह के फजल से है, और अल्लाह ने हमें ये इज़्ज़त बख्शी और ये फजल किया हमारे ऊपर, और सारी इज़्ज़तें अल्लाह ही देने वाला है, इन्नल इज़्ज़त लिल्लाहि जमीआ, कि हमने कुरान को सीखा इकट्ठे। तो इस मौके के ऊपर मैं ये चाहूँगा कि हम सब उन सब लोगों को याद रखें जिन्होंने इस कोर्स को आप तक पहुँचाने के लिए जिस भी तरह से, तो उनके लिए ख़ास तौर पे दुआ कीजिए। उसमें पहले सब नंबर पर है अल-फलाह मंजिल का स्टाफ जो हमें सारी मदद कर रहा होता है। उसमें हमारे ब्रदर वकास, मिस्टर शहजाद, मिस्टर मोहम्मद हुसैन,
उनका सारा स्टाफ, और ख़ास तौर पर जो मेरे उस्ताद हैं और इस्लाम मंजिल के चेयरमैन अरशद मलिक साहब, उन सबको अपनी दुआ में याद रखें। मेरे स्टूडेंट हैं शाहजेब सलीम, वो सारी इसकी टेक्निकल सपोर्ट आपको सारी मदद कर रहे होते हैं। उस बच्चे को आप अपनी दुआओं में याद रखें। ये वाहद मेरा स्टूडेंट है जिसका मेरे ऊपर एहसान है, वरना मैं कभी अपने स्टूडेंट्स को, तो इस बच्चे को मैंने कहा कि आपको हम हायर कर लेते हैं, हम पे करेंगे, आप जो काम करेंगे। उसने कहा जी जब आप नहीं लेते उजरत तो मैं भी नहीं दूंगा, मैं इसका जो है ना खुद से करूंगा इसे। तो वो बड़ी मेहनत करते हैं, आप अभी आपका रिजल्ट भी बनाएगा, वो सारी चीजें देखता है, तो उसके लिए भी दुआ कीजिएगा। हमारे भाई हैं बिलाल सईद, इन्होंने जबरदस्ती ये जिम्मेदारी ली हुई है, और ये मेरे हिस्से का जो है ना खुद इन्वेस्टमेंट करते जा रहे हैं, मैंने करनी थी, ये करते हैं कि ये सारी हमारी जूम की सब्सक्रिप्शन और इसके अखराजात वगैरह ये खुद लेते हैं। तो इनके लिए दुआ कीजिए, इनके दोस्त इसमें हेल्प करते हैं। मेरी फैमिली के लिए, हम सब के लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह हमें कुरान सीखने और अल्लाह हमें, मेरे बच्चों को, हम सबको ये तौफीक दे कि हम सब कुरान सिखाने वाले बने। आपके साथ AQTs हैं हमारे, असिस्टेंट कुरान टीचर, इन सब के नाम मैंने यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिखे हुए हैं, उन्होंने अपने इंट्रोडक्शन के ग्रुप्स में डाले थे। ये बड़ी मेहनत करते हैं, बैकग्राउंड में ये एक इनका ग्रुप है, हर वक्त ये इसको डिस्कस करते रहते हैं। तो इन सब के लिए आप दुआ करें। इनका जज्बा है, इन्होंने खुद से ऑप्ट किया था कि हम कुरान पढ़ाने की तरफ आना चाहते हैं, ये मेहनत कर रहे हैं। अल्लाह करे ये सारे कुरान पढ़ाने के इस प्रोसेस से जुड़ जाएं और हम सब मिलकर इंशाल्लाह इस उम्मत को कुरान पढ़ाने के लिए कोशिश जारी रखें। इसके अलावा भी वो सब लोग, आप में से वो सब लोग जो दूसरों को बता रहे हैं, आप उन्हें पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह ताला सबको अपनी तरफ से खुसूसी अपनी रहमतें दे, अपने खजानों से आपको अनायत अता करे। अच्छा, जाते जाते ये टीचर बनिए, मैं आप सबसे फिर कहूँगा इसको यहाँ तक ना रखिए। मुसलमानों के 90% लोग जो हैं, अगर आप नॉन अरब लोगों को छोड़ दें तो उन्हें कुरान का नहीं पता, नमाज तक नहीं आती हम लोगों को, अरबी समझ ही नहीं आती और बस हम पढ़ते जाते हैं। तो इन सब को सिखाने के लिए अगर मैं आप हम सब शुरू कर दें और सालों लगे रहे, आप देखें ना 1 अरब से 1.5 अरब मुसलमानों की आबादी हो रही है, तो 90% उसको, इन सबको कौन सिखाएगा? हम सबको इसका हिस्सा बनना पड़ेगा। इसके बाकायदा टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं, आप बेसिक लेवल क्वालिफाई कीजिए, QC1 कीजिए, 90% नंबर लीजिए, वर्क बुक इसके लिए कंडीशन होती है लाजमी, वो आपको आती हो, QC2 में एनरोल हो जाए और फिर आप सिखाना शुरू कर दें लोगों को तो प्रॉपर तरीके से। और अब आपसे आज चूंकि कोर्स मुकम्मल हो गया तो खुशी की बात है, अल्हम्दुलिल्लाह। आखिरी बात जो है ना मैं आपसे करना चाहता हूँ, और आखिरी बात के हवाले से, मैं असल में ना एक दिन मस्जिद में नमाज पढ़ के निकला, तो वहां मैंने देखा कि एक साहब जो है वो ये परफ्यूम जो है ना मस्जिद के बाहर खड़े थे, और जो भी नमाजी बाहर निकल रहा था उसको ना ऐसे परफ्यूम हाथ पे लगा रहे थे, और साथ कह रहे थे कि ये परफ्यूम लगवाए बगैर ना जाना, खुशबू लगवाए बगैर ना जाना, इतर लगा रहे थे, इतर की खुशबू लगा रहे थे और कह रहे थे ये लगाए बगैर ना जाना। तो जब 2 4 5 लोगों को लग जाता था ना इतर, तो फिर कहते थे कि ये 200 रुपए का है, आपके लिए 100 रुपए में। तो मुझे वो बड़ा एक जबरदस्त उनका मार्केटिंग स्टाइल लगा कि पहले लगा दो, सुंघा दो, अब वो थोड़ा सा ऑब्लाइज होकर लोग, और कुछ थोड़े से मुरब्बत में, मेरा ख्याल है, मेरा जो भी था उनका ये मार्केटिंग का तरीका कार था, और कुछ लोग 2 4 रुकते थे और वो 100 रुपया देके वो इधर खरीद लेते। मैंने सोचा ये बड़ा अच्छा तरीका है मार्केटिंग का, तो मैं भी यही काम करता हूँ। पहले आप सबको जो है ना फ्री कोर्स पढ़ाता हूँ, जब आप सारे ये पढ़ लें तो फिर आपसे अपनी उजरत मांगूंगा। तो अब मैं चूंकि आपसे पैसे मांगने लगा, उजरत मांगने लगा, उजरत, तो अब आप भाग तो नहीं जाएंगे? कितने लोग तैयार हैं मैं आपसे अगर फीस मांगू, उजरत मांगू मुझे देने के लिए? चैट बॉक्स में बताइए जरा मुझे। अच्छा, ये मुझे लगता है लोग भाग गए हैं, उन्होंने कहा अब ये वही काम होने लगा, पैसे मांगेंगे हमसे, फीस मांगेंगे कोर्स की। अच्छा, नहीं आ रहे हैं जो आप, कुछ लोग तो तैयार हैं, लोगों के पास पैसे हैं मुझे लगता है।
माशाल्लाह। अच्छा जी, अब जज़ाकल्लाह, आप सारे ही तैयार हैं, तो ऐसे करते हैं। अच्छा, बिल्कुल भी नहीं भागेंगे, ठीक हो गया। तो मैं ये करता हूँ कि मैं अपनी उजरत अल्लाह से मांगता हूँ, और आप अल्लाह से दुआ भी करता हूँ कि अल्लाह ताला, मैंने आपके हजूर ये इन्वेस्टमेंट की है, तो अल्लाह ताला इसको मेरी ज़िंदगी की बेहतरीन इन्वेस्टमेंट बना के इसका अच्छा अजर अता फरमाए। तो आप सबसे जो है ना, आपसे ये दरख्वास्त करूंगा, आपके पास पैसे हैं, आपके पास रिसोर्सेज हैं, आपको अल्लाह ने अक्ल फहम दिया है, शुमार नेमतों से नवाजा है, तो बराए मेहरबानी आप 3 काम कीजिए। 3 काम। सो पहली चीज जो है ना, सबसे पहली और सबसे बुनियादी और अहम, वो ये है, अब आप कुरान सीखने को छोड़िए नहीं। इसका बदला ये है, अल्लाह ने आप पर ये फजल किया है, तो आप अब कुरान सीखना मत छोड़िए, इसको कंटिन्यू रखिए, जिस तरह भी मुमकिन हो, थोड़ा बहुत जैसा भी, आप इसको कंटिन्यू रखें। पहली बात तो ये है आपसे दरख्वास्त। दूसरी बात मैं आपसे ये कहूंगा कि इसको कुरान को पढ़ाने की तरफ भी आपने अब नियत कर लेनी है, तवज्जो करनी है, और अपने सारे रिसोर्सेज आप ये जो मुझे ऑफर कर रहे हैं ना, आप ये कुरान को फैलाने के लिए, अपने सीखने के लिए उस पर खर्च कीजिए। आप अपने कुरान सीखने के लिए इसको खर्च कीजिए, लोगों को कुरान सिखाने के लिए खर्च कीजिए, और मुख्तलिफ तरीके हैं, बड़े आसान आसान। आप बच्चों को नाजरा कुरान पढ़ा दीजिए, आप किसी शख्स को सूरतें आपस में कंपटीशन कीजिए, याद करवाना शुरू कर दीजिए, कोई अल्फाज बता दीजिए, ऐसे लोग जो कुरान पढ़ा रहे हैं उनको सपोर्ट कीजिए। आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा शख्स है जो अफोर्ड नहीं कर सकता कुरान पढ़ना, उसको मदद कीजिए, ये कोर्स उसको स्पॉन्सर कर, जो भी आप करना चाहते हैं, और अपने करीबी लोगों को सबसे पहले। सो एक ऐसा सिलसिला शुरू कीजिए कि ये उम्मत जो है कुरान की तरफ वापस आए। और मैं आपको एक चीज बता दूं, मैंने बहुत से स्कॉलर्स को भी सुना, मैं खुद भी सोचता रहता था कि ये क्या मसला, कैसे ये उम्मत का मसला कैसे हल होगा। बड़े चीजें ज़हन में आती थी, इत्तफाक से, इत्तेहाद से, ये करने से, वो करने से। इन माई वेरी हम्बल ओपिनियन एंड कैपेसिटी, आई हैव कम टू द कंक्लूजन, एक ही तरीका है, मैं और आप और हम सब मिलकर कुरान सीखें और कुरान लोगों को सिखाएं, और इस पर अमल करें, अमल करने वाले मुसलमान बने। दैट इज वन एंड ओनली सोल्यूशन फॉर दिस उम्मा टू बिकम सक्सेसफुल अगेन। देयर इज नो अदर वे। आप बाकी जो मर्जी कर लें। तो इसलिए एक सर्कल बनाइए, ऐसे लोग अहबाब अपने इर्द गिर्द इकट्ठे कीजिए, कुरान सीखने और सिखाने का प्रोसेस जो है ना, आप वो जारी रखिए। तो ये थी दूसरी बात। तीसरी और आखिरी इस हवाले से गुजारिश ये है कि आपने मुझे, मेरे बच्चों को, मेरी फैमिली को, मेरे वालिदैन को अपनी खुसूसी दुआओं में याद रखिएगा, उनकी लंबी उम्र के लिए दुआ कीजिएगा। और इसके साथ ही मेरी ये बात खत्म हुई। मैंने आखिरी एक बात कह के आपको 3 बातें कह दी। तो इंशाल्लाह आप जिस भी तरीके से चाहें, आप कोई स्पेशल ग्रुप के लिए चाहें कि जी हमारे ये लोग हैं, उनके लिए हम कोर्स करवाना चाहते हैं, जैसे भी, तो हम मिल के उसको कर सकते हैं इंशाल्लाह। और आपको ऑफर एक मैं देता चलूँ जाते जाते, और फिर मैं आपको बताता हूँ रवीन, और आपके सवालात भी लेता हूँ। माई ऑफिस इज इन फैसल मॉस्क। आप कभी इस्लामाबाद आए या इस्लामाबाद में रहते हैं तो फैसल मस्जिद आ जाइए, वहाँ मेरा नाम बताइए, मेरे पास आइए, चाय पीजिए, मुझे खुशी होगी आपको होस्ट करके। और लास्ट में ये कहूँगा कि कुरान जो है ना, इसको हमें अपने एक्शन बदलने होंगे इसको सीखने के साथ। आपकी फीलिंग बहुत अच्छी बात है, आप ग्रेटफुल हैं टू अल्लाह, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने अमल बदलने, हम सब ने, मैंने और आपने, अमल, वी हैव टू चेंज आवर एक्शंस। इन दिस कुरान शुड बी रिफ्लेक्टेड इन आवर एक्शंस। हमें झूठ छोड़ना होगा, बददियानती छोड़नी होगी, बदतमीजी छोड़नी होगी, बदअखलाकी छोड़नी होगी, एक्सट्रीमिज्म छोड़ना होगा, मोहब्बत से, उल्फत से, प्यार से, बच्चों को, बड़ों को, और सबको मिलके अपने रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके कुरान पर अमल करना होगा। इसके साथ ही जी इंशाल्लाह आपसे अगले कोर्स में मुलाकात होगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह में कुरान पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।